right, let's move on to the other news break that is coming in. This is the Allu Arjun controversy in the Stampede case. In an off-camera interaction with the media, it's Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan who addressed the ongoing Allu Arjun issue, saying that the law is equal for all and urged the law enforcement to prioritize public safety. He further said that it would have been better if Allu Arjun had reached out to the victim's family earlier. So while the bail hearing in Allu Arjun case has been deferred, it's a statement coming in from the Andhra Pradesh Deputy Chief Minister saying that the law is equal for all and that the actors should have reached out to the victim's family earlier. Let's also go across to Aneri, who's been tracking this very closely. Aneri, once again, if you can run us through that statement coming in from Pawan Kalyan, as well as the latest on the bail hearing, which has now been deferred in this whole case. Well, Samiksha, what we have been seeing is that back-to-back developments that have been taking place, in particular to the Sandhya theatre incident. Well, now we see Andhra Pradesh Deputy Chief Minister Pawan Kalyan has now made a comment. He has, during an off-cam chit-chat with the media there in Andhra Pradesh, Pawan Kalyan has stated that law is equal for all, and also he went on to state that it would be better if Allu Arjun or someone from Allu Arjun's end would have approached the family much earlier. And not only that, Pawan Kalyan also went on to state that it is good that Revant Reddy did not act like YSRCP leaders. He has been slamming the YSRCP, and he stated that it is good that Revant Reddy is not acting like YSRCP leaders, but also at the same time he emphasized on the law taking its own course, and that's the reason why we see statement coming in from Pawan Kalyan where he says that law is equal for all. And in the meantime, when we talk about the court hearings that have been going on one side we see that the Allu Arjun's counsel has already filed for a bail petition, and that will be heard on the 3rd of January, as there were arguments which went on today in the court. And also on the other side, the Sandhya Theatre trial case will be taken up in the court on the 10th of January. Viewers, cutting across to some breaking news. There are visuals coming in from Tamil Nadu's national capital, Bhavan, where students of the ABVP are staging protest over the Anna University's sexual assault case. These are the live visuals exclusively brought to you on your screens by Republic TV. First, we're being joined by my colleague Komal from Ground Zero to get us more on the story. Komal, what are the demands of the students of the ABVP who are staging a protest outside the Bhavan? Komal. बिल्कुल देखिए, एबीवीपी के ये कार्यकर्ता है और डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए, क्योंकि देखिए तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 ईयर की जो एक स्टूडेंट है उसके साथ देखिए किस तरह से दुष्कर्म होता है, उसी को लेकर के यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है एबीवीपी के वो इकट्ठा हुए हैं। आपको साफ तौर पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये तमिलनाडु भवन के बाहर बैठ गए हैं। इनकी साफ तौर पर मांग है कि जब तक इनको वहाँ पे एबीवीपी के कार्यकर्ता कुछ ऐसे थे जो से लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको गिरफ्तार किया जाता है। रेप पीड़िता जो है उनको न्याय नहीं मिलती है, इसी को लेकर के देखिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आगे जो है वो लड़कियां बैठी हुई है, काफी ज्यादा जो गुस्सा है एक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और क्या आगे जाएंगे तेलंगाना भवन भी अंदर जाएंगे, परमिशन लेंगे आप? हाँ जी, आपके लीडर से पूछिए, ये हमें लीड कर रहे हैं। एक्चुअली तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म होता है। मांगे ये है कि उस छात्रा के साथ जब दुष्कर्म होता है तो उसकी सारी जानकारी लीक कर दी जाती है, और जब उस जानकारी को लीक कर दी जाती है तो उसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि उस छात्रा को भी न्याय मिले और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बंदी बना रखा है उनको भी छोड़े। बिल्कुल देखिए, आगे यहाँ पे लड़कियां आपको जो नजर आ रही है वो बैठ गई है, लेकिन थोड़ा और भी पीछे लिए चलेंगे तो देखिए इस तरह के जो प्ले कार्ड्स है वो
पोस्टर्स लेकर के बाकायदा यहाँ पे जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स, एबीवीपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, थोड़ा भी जैसे कहेंगे कि पीछे की भी दिखाइए कि अगर हम पीछे तक चले तो भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं आपको वो नजर आ रहे होंगे। साफ तौर पर इनका एक गुस्सा जो है और न्याय की मांग लगातार कर रहे हैं। एक बार आपको देखिए ये दिखाएंगे कि किस तरह से पोस्टर लेकर के आए हैं, साफ तौर पर डिमांड जस्टिस की कर रहे हैं। तेलंगाना भवन के बाहर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो इस वक्त जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर आपको नजर आ रही है। साथ ही साथ ये लगातार मांग करे कि इन्हें आगे जाने दिया जाए, लेकिन आगे जो है बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स लगातार एक्टिव है। डीएम के सरकार ने जो अनदेखी करी है उस पर कड़ी से कड़ी का सजा देनी चाहिए अपराधियों को और उन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये जो जुल्म किया है तमिलनाडु में नहीं, अगर पहले भी ये देखा जाता प्रशासन द्वारा तो आज ये दिन नहीं आता। अपराधी ने जो घटना की है ये पहले भी कई अपराध कर चुका है, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा लेनी चाहिए इस पे। तो कब तक यहाँ बैठेंगे? जब हमारे संघर्ष जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक ये यहाँ पे बैठे रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही देखिए एक और तस्वीरें दिखाएंगे। ये सामने देखिए तेलंगाना भवन है, लेकिन यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स आगे ना जाए उसको लेकर के साफ तौर पर देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ गए हैं, इन्हें यहाँ पे रोक दिया जाता है। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि आगे जाने की कोशिश करेंगे और तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो एबीवीपी के कार्यकर्ता जो अन्ना यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसे लेकर के जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई जब तक नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन देखिए पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट हो गई है। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स काफी ज्यादा जो है First on Republic, these are the live visuals from outside the Tamil Nadu Bhavan in the national capital where students of the ABVP are staging protest over the Anna University sexual assault case. We will keep tracking the ABVP's protest outside the Tamil Nadu Bhavan in the national capital right after this short break. Stay tuned to Republic TV.